डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello everyone, hope you all are doing well. Be positive, stay positive and always ready to learn something new each and every day of our life, right? So let's start a new topic. I am Nelam Pandya, Assistant Professor, Vocational Professional Department, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University welcomes you in a Chaitanya Studio online lecture series of BCAR course, paper code number 105, Communication Skill, Block 1, Unit 1, which is Introduction of Communication. So let's start with the introductory part and learning objective of this unit. Define the term communication, understand the process of communication, know and understand the objective of communication. So here the three major and important objectives of this unit. Again I repeat, define the term communication means definition of communication, understand the process of communication and know and understand the objectives of communication. So this is a communication picture. The picture is given. The picture shows that the communication between the people, one to another person. The communication after all, it is the communication between two or more people. दो लोग बात कर रहे हैं कि या ग्रुप में बात कर रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. सो लेट्स हैव अ लुक of basic definition of communication and introduction part of this unit. After learning the objective part of this unit, now we are discussing about introduction, what is communication and detailed definitions given by the different authors of communication. So here the given communication is the one of the most important aspect of human being as a social animal. The human being is the only animal on this planet which can communicate in a many ways as well as for many different purposes. The basic instincts of human being include the curiosity, education, invention, innovation and the purpose of passing it to the next generation. तो सारी जगह पे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है. आइदर आप एजुकेशन लेवल पे हो, इनोवेशन लेवल पे हो, क्यूरियोसिटी लेवल पे हो या कोई भी लेवल पे जाके आप काम कर रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे भी हायर लेवल से लेके लोअर लेवल तक के जो एम्प्लॉयज़ है सबके साथ अलग अलग तरह से इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेशन करना पड़ता है. तो मैं कह सकती हूँ कि कम्युनिकेशन जो है वो सभी जगह पे सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे लिखा है कि दिस इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, रिलेशनशिप, सोसाइटी. आप रिलेशनशिप की बात करो तो फैमिली में आपको रहना है, फ्रेंड्स के साथ रहना है, कि समाज में आपको रहना है, सोसाइटी में रहना है, सभी जगह पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके पोलाइट वे में आपको रहना पड़ता है. तो कम्युनिकेशन सभी जगह पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. नाउ इंट्रोडक्शन जो है उसमें आगे लिखा है कि फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी कंसेप्ट इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट, हाउ, व्हाई ऑफ इट. So the defining term communication is the first step while dealing with the unit answering the question what. There are many definitions available but a few simple one are provided here. There could be a many possible definitions too. After understanding the definition, we need to talk that how communication works. For this, we have to understand the process of communication which is important. The process of communication being with the idea being generated in the mind of the sender and ends with the receiver of the communication message giving the feedback. After that, why the communication is needed is explained using the various objectives of communication. तो ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, जो भी हमने डिस्कस किया, उसमें टोटल 3 स्टेप्स में काम हुआ है. सबसे पहले व्हाट इज कम्युनिकेशन. तो जो डिफरेंट डेफिनेशंस है
उससे हम जान पाएंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन किस वे में होता है, कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, वो हमें व्हाट से मिलेगा, व्हाट इज कम्युनिकेशन। देन सेकंड इज हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स, कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, अलग अलग जगहों पे कितने प्रकार के इफेक्टिव स्टेप्स है जिससे हम अच्छी तरह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे में कर पाते हैं। तो हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स प्रॉपरली, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज गिवन वन बाय वन, जो हम आगे की स्लाइड्स में वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टेप बाय स्टेप। एंड द थर्ड इज why communication is needed is explained in using various objective of communication। तो why के लिए, why के आंसर के लिए why communication is needed, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो हमें तीनों आंसर मिल जाएंगे, व्हाट इज कम्युनिकेशन, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई कम्युनिकेशन इज नीडेड। सो लेट्स कंटिन्यू विद द objectives. Definition of communication. So basic definition is the term communication is derived from Latin word communicare, which mean to important, to participate or share or to make common. Hence the literally communication refers to sharing a common idea or establishing the common understanding with someone. कम्युनिकेशन क्या है, तो एक बेसिक चीज़ है कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन है, आपको अगर सामने वाले को एडवाइस देना है, सामने वाले को मोटिवेट करना है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है सामने वाले को नहीं पता है, वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, उसे माहितगार करना है, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। अगर आप कम्युनिकेशन ही नहीं करोगे तो सामने वाले को कोई न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग विद समवन। कोई अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करनी है, उसे मोटिवेट करना है, एडवाइस देना है, उसे क्रिटिसाइज करना है, उसको कोई टॉपिक के बारे में बताना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन है द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो नाउ द डेफिनेशन इज गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स। फर्स्ट जो है वो ऑथर ने कहा है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन। जैसे आगे मैंने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपको पता है वो आपको आगे पास करनी है, तो कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा। और अंडरस्टैंडिंग द फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन को आपको एक्सप्लेन करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो एडवाइस के रूप में हो सकती है, मोटिवेशन के रूप में हो सकती है, कोई सैड न्यूज़ हो सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ हो सकती है, कोई अच्छी सी मतलब अच्छी सी इन्फॉर्मेशन है जो सामने वाले को नहीं पता है बट आपको पता है, तो आपको अगर उसे माहितगार करना है तो कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू पास द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। नाउ सेकंड ऑथर ने कहा है कि कम्युनिकेशन इज समथिंग पीपल डू टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। वन मस्ट डू दैट हाउ टू पीपल रिलेट टू ईच अदर। पीपल जो व्यक्तिगत तौर से एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे दी है, कम्युनिकेशन इज द समथिंग पीपल डू टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। वन मस्ट अंडरस्टैंड हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर। कम्युनिकेशन करने के बाद आप एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हो, एक दूसरे को जान पाते हो। कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है तो कम्युनिकेशन के द्वारा ही आप एक दूसरे के साथ बात करके, कोई मुद्दा है, कोई टॉपिक है जो सामने वाले को नहीं पता है, अदरवाइज कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। तो डिस्कस करने से, कम्युनिकेशन करने से चीज़ें जो होती है वो इजीली गोइंग थ्रू होती है और इजी हो जाती है, और उसके आफ्टर हम कोई डिसीजन ले पाते हैं। तो डिसीजन लेने के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है।
नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट। एंड नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। एंड अगेन आगे डेफिनेशन दी है कि कम्युनिकेशन इज any means by which thought is transferred from one to another person। तो कम्युनिकेशन है उसमें क्या क्या एक्सचेंज होता है, तो फैक्ट जो भी कोई सत्य है, सत्य घटना है या फैक्ट है उसे आपको शेयर करना है तो भी कम्युनिकेशन अच्छे से करना पड़ेगा, पोलाइट वे में करना पड़ेगा। आइडियाज़, कोई आइडिया आपको शेयर करना है तो कम्युनिकेशन होगा। कोई ओपिनियन आपको देना है तो उसमें भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। इमोशंस, इमोशन, हैप्पी इमोशंस है, सैड है, कोई भी प्रकार के इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना है कि आई एम सो मच हैप्पी, आई एम सैड, आई एम ब्ला ब्ला वॉटएवर। तो कुछ भी चीज़ों के लिए आपको कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। तो ये जो सारी डेफिनेशंस है आफ्टर एंड ऑफ द जो डिस्कशन है हम कह पा रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एनीथिंग, टू शेयर एनीथिंग, टू गाइड एनीथिंग। तो कुछ भी गाइड करने के लिए भी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जानने के बाद हमें पता चलेगा कि हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स, कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पे काम करता है, हाउ इट इज़ वर्क्स। तो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन comprise the transmission of sender's idea to the receiver and the receiver's reaction to the sender in form of feedback. The main stage involved in the communication process as follows. So again I repeat, यहाँ पे लिखा है कि process of communication, तो टोटल 3 पार्ट में यहाँ पे काम होता है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्राइज द ट्रांसमिशन ऑफ सेंडर। एक तो सेंडर पार्टी हुई, सेंडर कौन है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। रिसीवर कौन है, जिसको इंफॉर्मेशन मिल रही है। और तीसरा जो स्टेज है वो है फीडबैक। तीसरा स्टेज है फीडबैक, मतलब एक ने जो है इंफॉर्मेशन सेंड की है तो वो सेंडर हुआ, एक रिसीवर हुआ, और आफ्टर एंड ऑफ द जो कम्युनिकेशन, आफ्टर एंड ऑफ द कम्युनिकेशन विल गेट अ फीडबैक। फीडबैक जो है वो लास्ट स्टेज है कम्युनिकेशन का, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का लास्ट स्टेज है फीडबैक। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट है जनरेशन ऑफ एन आइडिया, जनरेशन ऑफ एन आइडिया, देन आएगा एनकोडिंग, थर्ड वन इज चैनल एंड मीडिया, फोर्थ वन इज रिसीवर, फिफ्थ वन इज डिकोडिंग, सिक्स्थ वन इज थॉट एंड आइडिया, एंड लास्ट वन इज फीडबैक। तो ये पूरी एक साइकिल है जिसमें प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन रिलेटेड। सबसे पहले कोई भी चीज़ हमें कम्युनिकेट करनी है तो पहले एक थॉट क्रिएट होगा, आइडिया क्रिएट होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जनरेशन ऑफ एन आइडिया, आइडिया जनरेट होगा, फिर आइडिया एनकोडिंग होगा, फिर चैनल और मीडिया, कोई पर्सन डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर रहे हो या प्रॉपर चैनल के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो थर्ड पार्ट आएगा चैनल। फिर नेक्स्ट आएगा रिसीवर, जो रिसीवर जो है कम्युनिकेशन कर रहा है सेंडर और रिसीव कर रहा है दूसरा पर्सन, तो विच इज़ रिसीवर। फिर जो रिसीवर है वो क्या करेगा, जो भी कम्युनिकेशन करने के बाद इंफॉर्मेशन मिली है उसे डिकोड करेगा। एंड फिफ्थ वन है थॉट और आइडिया, उसकी आइडिया में उसके ट्रांसफॉर्म करेगा, और लास्ट वन है फीडबैक। सो ये है प्रॉपर चैनल ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जनरेशन ऑफ एन आइडिया, then encoding, then channel and media, then receiver, then decoding, then thought or idea, and last one is feedback. So this is the proper feedback of process of communication. So now we are going through one by one. First point is generation of an idea or thought. The process of communication begins when an idea, thought, feeling or a piece of information arise in the mind of the communicator and he wants to transfer to someone.
सबसे पहले कोई एक बंदे के माइंड में कोई थॉट क्रिएट होता है, वो थॉट को हम आइडिया भी कह सकते हैं। वो आइडिया क्रिएट होगा, फिर जो है वो फीलिंग्स है या फिर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी आइडिया क्रिएट हुआ है उसे पास ऑन करना है दूसरे व्यक्ति के सामने। तो उसे हम क्या कहेंगे, जनरेशन ऑफ एन आइडिया और थॉट। आइडिया आया है बट उसे ही और शी वांट्स टू ट्रांसफर टू समवन। देन सेकंड जो प्रोसेस है वो एनकोडिंग है। व्हेन द आइडिया इज जनरेटेड इन द माइंड or communicator, they put the idea in a suitable symbol or sign in a such kind of words, letters, signals, sound, gestures, picture, etc. मतलब अलग अलग तरह से आप इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हो। तो वो इंफॉर्मेशन पास करने के तरीके कौन कौन से हैं, तो सच टाइप ऑफ आप वर्ड्स, आप बाय वर्ड भी वो चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो, कोई सिग्नल या साइन या सिंबल दे के भी आप इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो, कोई साउंड के थ्रू आप इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो, जेस्चर, पोस्चर, अलग अलग हाव भाव से, व्यक्तिगत हाव भाव से भी आप अपना जो मैसेज है वो कन्वे करके सामने वाले तक आप पहुंचा सकते हो। पिक्चर्स के माध्यम से भी आप इंफॉर्मेशन को एनकोड कर सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंट साइन ऑफ एनकोडिंग द इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन रिप्रेजेंटिंग द आइडिया transmission. Such a process is calling a encoding. Third one is a channel and media. The communicator convey the message oriented by encoding to the receiver through the suitable media and channel. The words channel and medium are often used interchangeably. However, in case they are different, for example, a letter is a medium and the mail service is a channel. Telephonic talk is a medium and telecommunication is a system channel. Speech is the medium and air carrying sound waves is the channel. So two parties available for channel and media. So यहाँ पे different examples दिए हैं कि what is channel and what is media. तो first यहाँ पे दिया है कि for an example a letter is a medium and the mail service is a चैनल। जो वर्ड्स है वो वर्ड्स जो है वो एक प्रॉपर चैनल से हमें भेजना है, बट वो जो मीडिया है उसका माध्यम कौन सा है, हमें कोई शब्दों को सामने वाले को पहुंचाना है, बट वो शब्दों का माध्यम क्या है, तो ईमेल सर्विस है। ईमेल सर्विस से हम मीडिया थ्रू हमारा मैसेज कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिसीवर। दिस स्टेज इज वेयर द रिसीवर रिसीव द एनकोडेड थॉट्स और मैसेजेस। जो भी सामने वाले व्यक्ति ने कोई भी थॉट्स क्रिएट किया है उसे पहले थॉट्स क्रिएट होगा, उसके बाद एनकोड होगा, एनकोड होने के बाद चैनल और मीडिया के थ्रू वो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। तो पहुंचने के बाद रिसीवर क्या करेगा, तो नेक्स्ट है डिकोडिंग। पहले तो उसने इंफॉर्मेशन रिसीव कर दी, रिसीव करने के बाद डिकोडिंग किया। तो ऑन द रिसीविंग द मैसेज द रिसीवर इंटरप्रेट्स बाय ट्रांसलेटिंग द साइंस सिंबल इनटू थॉट्स एंड आइडिया। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैसेजेस बाय द रिसीवर थ्रू द ट्रांसलेशन ऑफ सिंबल्स सिग्नल्स इनटू आइडिया इज कॉल्ड अ डिकोडिंग। जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली है वो अपने थॉट के हिसाब से, अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से उसे क्या करेगा, डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद वो एक डिसीजन पर पहुंचेगा, थॉट और आइडिया। द डिकोडिंग टू द मैसेज बाय रिसीवर विल जनरेट द थॉट इन हिज और हर माइंड एंड इनिशिएट द फीडबैक और अ रिस्पॉन्स। जो भी इंफॉर्मेशन उसे मेल थ्रू मिली है, प्रॉपर चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उसको सामने वाले व्यक्ति को इंफॉर्मेशन मिली है, उसे वो इंफॉर्मेशन मिल गई, उसने पूरा रीडिंग कर लिया, फिर उसे डिकोड किया अपने थॉट्स से, अपने आईक्यू लेवल से, और उसके बाद वो फीडबैक देना स्टार्ट करेगा कि हर एक जो है, हर एक व्यक्ति का माइंडसेट, थॉट्स, आइडिया, आईक्यू लेवल डिफरेंट है। तो जिसने भेजा है वो सामने वाले का जो आईक्यू लेवल होगा उस तरह से वो इंटरप्रेट करेगा और इंफॉर्मेशन को डिकोड करेगा, और उसके बाद वो फीडबैक देगा। तो लास्ट इज अ फीडबैक।
The receiver decodes the interpret and understand the message fully or partially, conveys the response to the communicator through some channel of communication. This process is called a feedback. Feedback means वो सामने रिवर्ट करेगा. हम कोई भी इम्पोर्टेंट मेल करते हैं या कुछ भी हम रिप्लाई करते हैं मेल थ्रू, तो सामने वाला उसका रिप्लाई करता है. तो जो रिप्लाई है वो रिप्लाई क्या है, इट्स काइंड ऑफ अ फीडबैक. जो उसको समझ में आया है, जो उसका माइंड है, आईक्यू लेवल है, वो उसकी इंफॉर्मेशन के अनुसार सामने मेल को रिवर्ट करता है, तो उसे उसका फीडबैक माना जाता है. नेक्स्ट, दिस इज द कम्युनिकेशन चैनल. चैनल जो है वो 3 तरह की होती है. वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन. वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है वो हायर अथॉरिटी टू लोअर लेवल एम्प्लॉय. सपोज वी आर इन सम ऑर्गेनाइजेशन, सो वी गॉट सम मैसेज और मेल फ्रॉम द हायर अथॉरिटी कि कुछ भी ये चीज़ आपको, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली एंड दिस इज आवर रूल्स एंड रेगुलेशन, यू हैव टू मेंटेन एंड फॉलो रेगुलरली. तो जो भी हमें कुछ भी एडवाइस या फिर कुछ भी अलग तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी मिलती है, तो उसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहेंगे. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो इंट्रा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन है. 2 एम्प्लॉय के बीच में जो कन्वर्जेशन होता है उसे हॉरिजॉन्टल कन्वर्जेशन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. एंड डायगोनल कम्युनिकेशन जो है वो है डिस्कसिंग और कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिपार्टमेंट. लाइक कोई यूनिवर्सिटी है तो उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट है और एडमिशन डिपार्टमेंट है. तो एडमिशन डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट से कोई पेमेंट रिलेटेड मेल करेगा या फिर बात करेगा, तो उससे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहेंगे. और जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है उसमें भी 2 सब टाइप्स है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो लोअर लेवल टू हाई लेवल है, और जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो हायर लेवल टू लो लेवल है. तो ये 2 तरह का वर्टिकल कम्युनिकेशन माना जाता है. तो दिस इज द मेजर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल. वो सभी जगह पे वर्क करता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी का फर्म है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सभी जगह पे इस तरह से कम्युनिकेशन होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का नेचर क्या है? सो इन अ सिंपल फॉर्म इट इज़ अ 2-वे प्रोसेस. अगर कोई बंदा खुद को मैसेज पास करता है तो उसे कम्युनिकेशन नहीं माना जाता. कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम 2 पर्सन चाहिए. 1 person pass the information to another person, so it is compulsory 2-way process. Communication process happens between 2 or more parties. अगर 2 लोग हैं वो आमने सामने कन्वर्जेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर कोई ओपिनियन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, या फिर जो इंफॉर्मेशन उसके पास है वो सामने वाले को वो बता रहा है, तो वो 2-वे कम्युनिकेशन हुआ. तो उसमें मिनिमम 2 लोग चाहिए और 2 और मोर पार्टीज. ग्रुप में भी कन्वर्जेशन हो सकता है. तो ग्रुप में जो कम्युनिकेशन होता है वो ग्रुप कम्युनिकेशन, 2 और मोर पार्टीज, एंड जो 2 लोग हैं उसमें 2-वे प्रोसेस होती है. तो सो दिस इज द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन. थर्ड वन इज कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फीलिंग, थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. कम्युनिकेशन का कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं होता, बट उसमें डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, नॉलेज. अगर किसी के पास नॉलेज है वो सामने वाले से शेयर करता है. वो पॉलिटिकल नॉलेज न्यूज़ है या फिर एजुकेशनल न्यूज़ है या फिर कोई ऐसी घटना है जो कोई विलेज में या फिर कोई अदर सिटी में है, वो सामने वाले को नहीं पता है, तो वो कम्युनिकेट करके सामने वाले को बताता है. तो उसे जो नॉलेज उसके पास नहीं है वो सामने वाले को दे रहा है, तो उसे भी कम्युनिकेशन माना जाएगा. सो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आइडिया,
feelings, information, thoughts and knowledge. Communication involves the mutually of understanding between sender and the receiver. दो लोग हैं, एक जो इंफॉर्मेशन दे रहा है और एक रिसीवर है जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है. सो बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक है वर्बल कम्युनिकेशन और एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. यहाँ पे कुछ MCQ एक दिया है कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ. तो आंसर में लिखा है कि आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड डी है ऑल ऑफ द अबोव. तो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया उस पर से हम क्लियरली यहाँ पे बता सकते हैं कि कम्युनिकेशन है वो क्या क्या एक्सचेंज करता है. आइडियाज भी एक्सचेंज करता है, इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज होती है, फीलिंग्स भी एक्सचेंज होती है. तो आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबोव. ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. फिर दूसरा MCQ दिया है कि पुटिंग एन आइडिया इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड सिग्नल्स आर कॉल्ड. और आंसर में दिया है जनरेशन ऑफ आइडिया, एनकोडिंग, डिकोडिंग और फीडबैक. तो यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है? क्वेश्चन है पुटिंग एन आइडिया इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और सिग्नल इज कॉल्ड. तो आंसर आएगा एनकोडिंग. जो भी आपको आइडिया मिला है उससे आप अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करोगे तो एनकोडिंग इज द आंसर. सेकंड जो MCQ दिया है उसमें लिखा है कि द पार्ट दैट कंप्लीट्स द फर्स्ट साइकिल ऑफ प्रोसेस इज कम्युनिकेशन. तो अगेन यहाँ पे आंसर आएगा एनकोडिंग. अगेन यहाँ पे कुछ दो MCQs दिए हैं. तो उसमें लिखा है कि इन अ क्रिकेट for an LBW, the bowler will in the blank to umpire. तो आंसर दिया है warn the umpire, instruct the umpire, appeal the umpire और motivate the umpire. तो आंसर आएगा appeal the umpire, क्योंकि जो LBW होता है उसमें अपील करनी पड़ती है कि आउट है कि नॉट आउट है. तो अपील करने के लिए आंसर यहाँ पे आएगा इन अ क्रिकेट फॉर एन LBW द बॉलर विल अपील टू द एम्पायर कि आइदर आउट और नॉट आउट. नेक्स्ट, इन द ब्लैंक हेल्प्स टू ब्रिंग द बेटर रिजल्ट. तो आंसर यहाँ पे दिया है वार्निंग, मोटिवेशन, अपील एंड कंप्लेंट. तो यहाँ पे क्या आएगा? मोटिवेशन. आंसर इज मोटिवेशन. मोटिवेशन जो है वो अच्छे रिजल्ट के लिए मोटिवेट, अगर किसी को आप मोटिवेट करोगे तो जो काम वो कर रहा है उसमें मोटिवेट होगे, अच्छे से अच्छा बेटर रिजल्ट वो लाके देगा. तो मोटिवेशन हेल्प्स टू ब्रिंग अ बेटर रिजल्ट्स. नाउ ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये जो इन अ वेरी फर्स्ट स्लाइड I was already discussed के we have a 3 type of question in our mind. What is communication? तो what is communication वो जो different definition थी उससे हमने जाना कि what is definition and how it is work. Second है how communication is needed. तो उसके लिए हमने देखा process of communication. और ये थर्ड जो है objectives of communication, उससे हमें आंसर मिलेगा how, what, how and where. फर्स्ट दिया है नॉलेज, सेकंड है एडवाइस, थर्ड है मोटिवेशन. ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है. नॉलेज, एडवाइस, मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन, रेजिंग द मोरल, ऑर्डर, काउंसलिंग, परस्यूएशन, सजेशन, रिक्वेस्ट, अपील, कंप्लेंट, वार्निंग, रिपोर्ट एंड इंस्ट्रक्शन. सो वी डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज अ नॉलेज. कम्युनिकेशन, किसी के पास नॉलेज है और उसे शेयर करना है तो कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट हर और हिज नॉलेज इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट या फिर लर्नर्स एट्सेट्रा. सेकंड इज एडवाइस. अगर आपको किसी को एडवाइस देना है तो एडवाइस देने के लिए भी बेटर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा. Now we are discussing about objectives of communication. Objectives of communication. First is a knowledge. Knowledge जो है वो अगर आपको किसी के साथ अपना जो knowledge शेयर करना है तो communication is the best way to share your knowledge. Second is advice.
अगर आपको किसी को एडवाइस देनी है अच्छे वे में कि ये काम आप करो तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर कोई स्ट्रैटेजी आपको बतानी है सक्सेस की स्ट्रैटेजीज, तो भी आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। मैं खाली कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बट जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो ऑलवेज वर्क करता है, मोटिवेशन जो है वो ऑलवेज वर्क करता है। तो कम्युनिकेशन वो बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने सामने वाले से बस बात कर ली, अपनी इंफॉर्मेशन पास कर दी तो बात खत्म, ऐसा नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो वन काइंड ऑफ एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन, एडवांटेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एडवांटेज ऑफ मोटिवेशनल कम्युनिकेशन। किसी के साथ बात करो बट इफेक्टिव वे में करो तो बेटर एंड बेटर रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये सारे जो पॉइंट दिए हैं, नॉलेज है तो वो भी इफेक्टिव वे में नॉलेज को शेयर करो। एडवाइस पोलाइट वे में, मोटिवेशनल वे में किसी को एडवाइस दो तो सामने बेटर आउटपुट आएगा। मोटिवेशन, किसी को आप अच्छी तरह से मोटिवेट करो कि नो जस्ट डू इट, मतलब आप कर सकते हो, यू कैन डू इट 100%। तो किसी को मोटिवेट करने से वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएगा, अच्छे से अच्छा काम करेगा। तो कम्युनिकेशन में मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है। फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपको देनी है बट प्रॉपर वे में आपको देनी है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। रेजिंग द मोरल, किसी की मोरल वैल्यू को आपको बूस्ट करना है तो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ऑर्डर, किसी को ऑर्डर करना है तो अगर आप किसी को बोलेगो प्लीज़ इतना कर दो तो ये ऑर्डर का फॉर्म नहीं है, बट आप ऐसे अच्छे से बोलोगे कि यू हैव टू डू इट, आपको करना ही है, तो ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो अच्छे से काम होगा। काउंसलिंग, अगर आपको किसी को मेंटल हेल्थ किसी की खराब है, डिप्रेशन में है, तो जो काउंसलर लोग हैं या फिर साइकियाट्रिस्ट है वो क्या करेंगे, अच्छे से उसे सामने बिठा के प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे कि बंदे के साथ क्या गलत हुआ है, उसको क्या प्रॉब्लम है। तो अच्छे से पोलाइट वे में सामने वाले से काउंसलिंग करके जो प्रॉब्लम की जड़ है उस तक पहुंचा जा सकता है। तो जो साइकोलॉजी है वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मतलब मानती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। नाउ 8 वन इज परस्यूएशन, उसमें भी कम्युनिकेशन काम आता है। सजेशन, किसी को अच्छा सजेशन देना है तो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना पड़ता है। 10th वन इज रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो भी आपको आना चाहिए कि रिक्वेस्ट कैसे की जाती है। तो हर एक चीज़ में कम्युनिकेशन का 100% रोल है, ये आप समझो। मैंने आगे जो डिस्कस किया, नॉलेज, एडवाइस, मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन, रेजिंग द मोरल, ऑर्डर, काउंसलिंग, परस्यूएशन, सजेशन, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही होती है। रिक्वेस्ट भी आपको पोलाइट वे में करनी है कि प्लीज़ कैन यू डू इट फॉर मी। तो ये जो है टोन, आपका जो टोन है वो बहुत मैटर करता है। 11th जो है वो अपील है, किसी को अपील करनी है तो भी आप पोलाइट वे में, आपको नम्रता से करना पड़ेगा तो ही सामने वाले तक वो जो कम्युनिकेशन है वो पहुंच सकता है। कंप्लेंट, आपको कंप्लेंट करनी है तो वो भी आपको आना चाहिए कि किस वे में, पोलाइट वे में आपका जो पॉइंट है वो कैसे रखा जा सकता है, कंप्लेंट कैसे की जा सकती है। थर्ड इज वार्निंग, आपको किसी को वार्निंग देनी है तो कैसे आप करोगे, वार्निंग का टोन अलग होता है। फिर रिपोर्ट, आपको किसी को रिपोर्ट करना होता है, डेली रिपोर्ट, हम जहाँ पे हम काम करते हैं तो आपको रिपोर्ट राइटिंग भी आना चाहिए कि वर्क रिपोर्ट आपको कैसे प्रॉपर वे में डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको भेजना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं। इंस्ट्रक्शन, लास्ट वन इज इंस्ट्रक्शन, आपको किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि देयर इज़ अ मीटिंग ऑन अ संडे और मंडे और ऑन 25th जनवरी और 26th जनवरी, तो आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे में आपको करना ही पड़ेगा। तो दिस ऑल आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। नाउ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स कि किसका जो मीनिंग है वो क्या है। फर्स्ट है क्यूरियोसिटी, इंस्टिंक्ट्स, अ फिक्स्ड पैटर्न एंड बिहेवियर
and response to something. Then second one is curiosity, a strong desire to know, to learn something. क्यूरियोसिटी, कोई काम करने की क्यूरियोसिटी है कि यार ये कैसे होगा, आई वॉन्ट टू डू इट डेस्परेटली, सो क्यूरियोसिटी वहाँ पे आती है. इनोवेशन, आपको कुछ नया इनोवेट करना है, अ न्यू मेथड और एन न्यू आइडिया. देन कम्प्रीहेंड, तो आपको कुछ समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसे बोलते हैं. इम्पार्ट किसे बोलते हैं, कम्युनिकेट, आपको पास ऑन करना है, माहिती को, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करनी है तो उसे इम्पार्ट बोलते हैं. ट्रांसमिट, तो अगेन किसी चीज़ को आपको ट्रांसफ़र करना है तो उसे ट्रांसमिट बोलेंगे. जेस्चर, जेस्चर क्या है, तो अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी एस्पेशली द हैंड और द हेड एंड टू एक्सप्रेस द आइडिया और मीनिंग. मतलब बंदा कैसे बैठा है इन फ्रंट ऑफ, आपको इंटरव्यू पैनल में बुलाया जाए और आप ऐसे बैठो, ये सारी चीज़ें नोट होती है. तो आपका जो जेस्चर और पोस्चर है वो भी एक प्रॉपर वे में होना चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, जो कि प्लेस के अनुसार होना चाहिए. कहाँ पे आप बैठे हो, कैसे बैठे हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती है. तो जेस्चर इज़ इम्पॉर्टेंट. इंटरप्रिट, आपको एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग, आप डिटेल में कुछ चीज़ें उसकी डेफिनेशन बता रहे हो या मीनिंग बता रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा, इंटरप्रिट. अप्रोच, द वे ऑफ डीलिंग, कुछ भी डील आपको करनी है, कुछ डिसीजन लेना है, सामने वाले से डील करनी है तो उसे अप्रोच कहा जाएगा. अर्ज, स्ट्रांगली रेकमेंडेड और एंकरेज. अर्ज मीन्स इन अ पॉजिटिव वे, आपको किसी को स्ट्रांगली ये चीज़ कोई बोले कि ये फीडबैक मुझे दो तो आप उसको स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे तो उसे बोलेंगे यू हैव टू अर्ज समथिंग. सेकंड, नेक्स्ट वन इज कैनलाइज, तो कन्वर्ट, एक्यूरेट, करेक्ट, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, एफिशिएंट, अचीविंग द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. आपको 100%, 1000% किसी का आउटपुट लाना है तो वहाँ पे आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, एफिशिएंट. यू हैव टू वर्क इन अ एफिशिएंट वे. 15 विच इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ स्टेइंग एब्सेंट, वो है एब्स्टेनिज्म, जनरली विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रीज़न. तो ये सारे टर्म्स है. रिलायबल, रिलायबल वफादार मीन्स समथिंग, समवन दैट कैन बी ट्रस्टेड, जिस पे भरोसा किया जा सकता है. रिलायबल पर्सन, हम कहते हैं कि द पर्सन इज़ वेरी रिलायबल टू दिस इंडस्ट्री, अ पर्सन इज़ वेरी रिलायबल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ट्रस्टवर्दी पर्सन है तो वहाँ पे ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, रिलायबल. कंसल्टेशन, मीटिंग और डिस्कसिंग. कंसल्टेशन मीन्स आप अगर डॉक्टर को कंसल्ट करते हो या फिर कोई काउंसलर को कंसल्ट करते हो या फिर आपको मानसिक कोई बीमारी है तो आप साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करते हो, तो ये सारी चीज़ों में आप कंसल्टेशन वर्ड यूज़ कर सकते हो. अश्योरेंस, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव आउटपुट निकलना है तो उसे हम कहेंगे अश्योरेंस, अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन, उसमें नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है तो वहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हो एश्योरेंस. डायरेक्टिव, इन्वॉल्विंग द मैनेजमेंट. ऑथोरेटिव, कमांडिंग. देन सॉर्ट, आप बोलते हो ना कि कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट आउट करना है तो सॉर्ट आउट के लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ होगा, ट्राई टू फाइंड. नेक्स्ट, पोटेंशियल. पोटेंशियल मीन्स कैलिबर, आप में कितना कैलिबर है, किसी चीज़ को 100% करने के लिए जो कैलिबर चाहिए उसमें आप कोई भी सेंटेंस में ये वर्ड यूज़ कर सकते हो. पोटेंशियल मीन्स पॉसिबल. अबाइड बाय मीन्स फॉलो. नेग्लिजेंस मीन्स केयरलेसनेस. नेक्स्ट है पिलफ्रेज मीन्स स्टीलिंग, किसी चीज़ को आप चोरी करके लाते हो तो उसे स्टीलिंग कहते हैं. BCAR कोर्स जो BBA में है वो है पेपर कोड नंबर 103 विच इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, एंड BCA में हमारा पेपर नंबर है 105 विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल. तो दोनों का जो यूनिट नंबर ब्लॉक 1 यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन वो हमने आज डिस्कस किया. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. एंड बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड डोंट फॉरगेट टू बी पॉजिटिव. थैंक यू सो मच. थैंक यू.